called Cyrus Says, a podcast that is watched and listened to across three lanes in Navi Mumbai and nothing else. But I've got some very interesting guests today from the cricket community. I'll introduce them in a second. Uske pehla, let's quickly review Kumbh Mela ka performance Monday night. And not to be critical, it's a great Mela, and I'm all for Melas. But 28 lakh people have what is called the Shahi Snan, which is that special royal bath. 28 lakh, just do the maths of that. 28 lakh log एक स्पॉट पे एक जगह पे एक टाइम पे and obviously masks and things like that are not really important when you're having a bath. So I'm thinking कि building vigilantes जो है हमारे पास मलबार हिल में और ये सारे lanes of Mumbai में who keep shouting at us for doing all kinds of things, put it in perspective. You're getting one guy doing something wrong here and there, and there you got 28 lakh people having a mass bath at the same time. So either we are the smartest country in the world or the opposite. I'll not take that chance because I think Sabha and Rajiv are not interested in controversy. They're here to talk cricket. That's why they're in the lovely spot where there is no real controversy, at least not now. So let's introduce the one and only Syed Sabba Karim. Growing up, of course, I used to follow his career. He's played a test match for India, lots of one-day internationals. What is this about Bihar, the Bihar Jharkhand area producing one after another? You look at it, you started the trend, then we've got the great Dhoni, and now we've got Rishabh Pant, and it looks like he's going to stay forever. Not Rishabh Pant, Cyrus. Ishan Kishan. Ishan Kishan also, but Rishabh also antecedents of Bihari. So I'm just thinking, suddenly all wicket keeping is in the hands of. By the way, antecedent of Prithvi Shaw is also from Bihar. He comes from Gaya. Yeah. Really? अभी बस वेट करते हो जो बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं. मैं सोचा वो स्कॉटिश होगा यार. SHAW नाम कहाँ से आ गया? That's a put on name. Yeah, but Bihar has got incredible talent there, Cyrus. वहाँ पे ना for about 10 to 15 years, BCCI never allowed cricket to prosper. I mean, they were not given the right kind of affiliation. That is why a whole generation of cricketers suffered. But I think gradually all that is. Even now there's a controversy ना वो बिहार का Premier League जो था ना एक महीना पहले, and then suddenly in the middle they scrapped it because there was no permissions. Bihar is at loggerheads always. The Bihar State Association with BCCI. I don't know whether you're in a position to answer these questions. I know they're very tight about everything. No. I'm more than happy. I think things are getting better, but I think there is a major communication problem, Cyrus, from the association, from Bihar Cricket Association. I wish they had conveyed all this in a better or a proper manner to BCCI. इस तरह की बातें फिर कंट्रोवर्सी कभी नहीं होती. It's all about communication, sir. Ji. Achha, let's not forget your partner, Rajiv Mishra, is waiting there patiently. Let's give him the respect he deserves. Rajiv ji worked as a sports editor and anchor with India News and ITV Group. वहाँ पे पैसा तो उन्हें मिला नहीं, but फिर भी passion, जोश, जुनून जो चीज़ है, that kept him going. He also worked with Aaj Tak India and News 24, so all the channels basically. And he's a student of Sports College LKO. ये exactly क्या है, sir जी? सरस भाई लखनऊ. ओ लखनऊ. मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं. Oh, अच्छा. Sorry जी, वो कुंभ मेला से मैं distract हो गया ना. And of course, Test cricket is his passion. But the most important thing is you all have come together to do a show called Khel Niti, which is, I presume, not just cricket but also all sports. जी. और ये इसमें क्या है सारस भाई कि देखिए मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, तो यहाँ भी नंबर बाद में आया, सभा भाई का पहले आ गया. तो ये आपके शो में भी है कि पुराना ही बॉल मिलेगा, यहाँ पुरानी गेंद ही बॉलिंग करने को मिलेगी. लेकिन अच्छा है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है लेकिन आपके पास, चिंता ना करें. राजीव जी, बात क्या है इसमें कि आई थिंक सभा जी ने क्यों नहीं दिया बराबर. वो क्यों था, शाबाश राजीव, वेल बोल्ड. उस टाइम पे आपका एंट्री होता था, बट इट डिड नॉट कम ऑन द राइट पॉइंट. यार आप स्लेजिंग करता था ना सभा, बिकॉज़ उस टाइम पे वो स्टंप माइक वगैरह नहीं था ज्यादा. आई डोंट थिंक वी कुड हियर इट. या स्लेजिंग में करता भी नहीं था सर. आई विश मैं ऋषभ पंत से थोड़ा बहुत सीख लेता. और मेरी वजह से ना जो मेरे बाद वाले जनरेशन ऑफ विकेट कीपर, लुक एट एमएस धोनी, वो भी कहाँ कुछ बोलता है. नहीं, वो सार्कास्टिक बहुत करता था. सारस भाई, सभा भाई के बारे में एक चीज फेमस है, इनको बाबा बोलते हैं. आप इनको पूछेंगे, इनका निकनेम जो इनके साथ के खेले हुए लोग हैं, इनको बाबा साहबा बोलते हैं. तो इतने शांत थे विकेट के पीछे के बाबा इनको सब बुलाते थे. बाबा एज इन मराठी फॉर फादर. बाबा. But back to sledging, Sabha, the game has changed a lot in the last few years. First, we have Australians being told not to sledge, but Indians have become very vocal, yaar. They've become vocal and volatile also at times, Cyrus. हम लोग तो Australians की जैसा हो गए ना. हम लोग सीधा चढ़ जाते हैं. अब मुझे लगता है कि इतने जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स ने बहुत कुछ सुना है, तो ये जो जनरेशन है उसको लगता है कि अब कोई एक आदमी अगर बोलेगा तो सारे के सारे 11 है उसके पीछे पिल पड़ते हैं.
तो ये अब बहुत ही मतलब इज बिकमिंग वेरी डेंजरस टू प्ले अगेंस्ट इंडिया. अभी चेतेश्वर पुजारा भी कभी कभी सुनते चेतेश्वर पुजारा की मुंह से तो आई से व्हाट्स नेक्स्ट यार. या अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो फॉरेन टीम है वो तो हमारी टीम इतनी अच्छी हो गई उनके खेलने से घबराते हैं, पर मुझे लगता है स्लेजिंग की वजह से अब डर लगने लगा है टीम्स को कि यार ये पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल देगा. और हमारी जो अंग्रेजी भी है वो भी ऊपर नीचे मिला जुला के हम लोग सब कुछ बोल देते हैं. कम से कम सभा भाई 5-6 एक चीज आपने देखा है आज की जनरेशन का असर ऐसा है साइरस भाई कि राहुल द्रविड़ आ गए विज्ञापन में, वो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैट चला रहे हैं, कार तोड़ दे रहे हैं. तो ये आज की जनरेशन का असर है कि राहुल द्रविड़ जैसा शांत आदमी भी आके देखिए विज्ञापन में सही झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कम से कम. अरे वो एलन डोनाल्ड की गुस्सा है 20 साल के बाद निकल चुका है यार. इट्स लिटिल ऑड यार कि इतना टाइम बॉम्ब था उसमें, बट क्या एक्टिंग था. आई थिंक व्हाट डू यू थिंक सभा? इट वाज प्रीटी गुड. राहुल द्रविड़ का चिलम चिला. मैंने टेक्स्ट में उसको कहा कि यार पहली बार योर रियल सेल्फ इज कमिंग आउट. जो भी पहले जो गुस्सा होता था वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में आकर ही कभी कभी नजर आता था. वो भी अपने आउट होने पर गुस्सा था कि मैं आउट क्यों हुआ, उसी पे गुस्सा है और किसी चीज पे गुस्सा नहीं होता था. नहीं, जब सचिन was batting 194 in Pakistan, perhaps there would be a story there which no one will tell us. No, साइरस, पर उसमें गुस्सा राहुल द्रविड़ को नहीं था, उसमें गुस्सा सचिन तेंदुलकर को था. हाँ, वो भी सही बात है. मैं डबल सोचा से क्यों रोक लिया. कुछ अंदर की बात है ड्रेसिंग रूम में कि perhaps you know the inside story कि exactly क्या हुआ. और by the way, साइरस, even now Rahul Dravid doesn't know why was Sachin Tendulkar angry. Okay, let's leave it there. They're all legends. I don't want to take पंगा with Sachin and Rahul. Great guys, as are you. So Rajesh जी, ये बताओ, ये खेल नीति के बारे में कुछ बताओ पहला. Let's talk about the show and then we'll talk cricket in general. सारस भाई, खेल नीति में एक तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं और सबा को क्रिकेट बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, और टीवी पे टाइम बड़ा कम मिलता है. वहां पे आपको 12 से 14 मिनट मिलते हैं आधे घंटे के शो में, तो आप बात पूरी कर नहीं सकते हैं. आप सपोज अगर एक कवर ड्राइव पे बात करने के सडनली आपके जहन में आ जाता है कि आप नहीं लेफ्ट आर्म स्पिन पे भी कर लें थोड़ी बात. तो खेल नीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बल्लेबाजों की कूटनीति पे बात कर रहे हैं, कप्तानों की रणनीति पे बात करते हैं, और साथ में अपनी खेल नीति बताते रहते हैं. और सबा क्योंकि प्रेडिक्शन बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सबा बाबा मैंने खेल नीति में नाम दे दिया. तो वो उनकी जो प्रेडिक्शंस है पिछले 4-5 मैच से हमारे आईवीएम पॉडकास्ट पे खेल नीति पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है. और एक्चुअली एनालिसिस करने का मुझे लग रहा है पॉडकास्ट से बढ़िया जरिया है नहीं साइरस भाई कहीं. 40 मिनट आपको मिल रहे हैं, आधे घंटे मिल रहे हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं एक एक खिलाड़ी के बारे में, एक एक जो आप मैच में लम्हा देखते हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उसमें. तो ये डिटेल में बातचीत करने के लिए और जो कुछ एक्सपीरियंस है सबा भाई के पास है, जैसे हमारे साथ निखिल भाई जुड़ते हैं, कभी कभी राजकुमार जी जुड़े, तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और बहुत ब्रीफ तरीके से आप उसको विस्तार से आप बता सकते हैं व्यूवर्स को, श्रोताओं को. तो मुझे लग रहा है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खेल नीति तो बता ही रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे थे सभा से धीरे धीरे पूछ के, और ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ बातें चलती हैं, मैदान पे क्या कुछ अंदर चलता रहता है. क्योंकि बीइंग अ टेस्ट प्लेयर, कंट्री रिप्रेजेंट किया है सभा भाई ने, तो ये सारी चीजें वो अचानक ही निकल के आती हैं, और वो टीवी माध्यम नहीं है मुझे लग रहा है जहाँ पे आप अचानक चीजें निकलवा लें. जब आप लंबी बातचीत करते हैं तो कहीं से एक छोटा सा मसाला मिल जाता है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो खेल नीति मुझे लग रहा है उसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन दिनों. और लंबी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के बारे में, बिकॉज आई थिंक क्रिकेट एक ऐसा चीज है वेयर यू नेवर एंड विद ओपिनियंस, राइट. और जैसा आपने बताया, the more you talk about it, the more interesting the situation is, and obviously you don't get the time on television broadcast and all that, and कभी-कभी I think producer भी डायरेक्ट करता है आपके कान में कि ये बोलो वो बोलो, इस तरफ पे जाना, उस तरफ पे जाना. भाई सबसे बढ़िया आता है क्या कि आप शो क्लोज कर रहे हैं और सडनली एक सवाल आ गया और आपने पूछ दिया, तो बोला जाएगा कि यार जो ऐड कम हो रही है उसका पैसा तुम्हारी सैलरी से कटेगा. तो वो स्लॉट जो बचाने के लिए आपको कभी-कभी इतनी जल्दी रैप अप करना पड़ता है, तो वो बड़ा वो एक्चुअली आपके कान में आता रहता है कि आपको कब क्लोज करना है, और वो 12-13 मिनट को आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं वो जगह है. यहाँ पे है कि आप बेस्ट निकलवा कैसे सकते हैं अपने सामने वाले से. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा खेल नीति. हाँ, और आई थिंक अंग्रेजी में एक शब्द है ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन. ये ऑर्गेनिक जैसा गपशप के टाइम पे या कॉकटेल पार्टी के टाइम में, या आई थिंक 3-4 गाइस सिटिंग टुगेदर चैटिंग, दैट एक्चुअल फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन जो आते हैं वहां पे, यू आर रेप्लिकेटिंग दैट व्हिच वी नेवर गेट इन द ब्रॉडकास्ट, वेरी रेयरली. आई थिंक जो कम समय की बात है, ऑब्वियसली आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स फॉर अ सेकंड. राजीव मिश्रा जी, कहाँ है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स? गायब हो गया.
हाँ, कुंभ मेला में फंस गया सब लोग। जी बिल्कुल, और अचानक सीन से गायब हुए, ढेर सारे लेग स्पिनर्स तो दिख रहे हैं, बट वो आपने जैसे कहा 28 लाख लोग नहा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है मास्क कहाँ है, तो वैसे ही मास्क की तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर भी गायब हुए हैं। मुझे लग रहा है साइरस के ये 28 लाख लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ही नहाने चले गए कुंभ मेला में टू मेक अ क्लीन स्वीप। लेकिन अभी कुछ अच्छे लेफ्ट आर्म कुछ अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं सारस भाई, हमने देखे डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि हम कभी मौका मिलता है स्टेडियम्स में जाके देखने का डोमेस्टिक क्रिकेट, तो यूपी से एक दो अच्छे लेफ्ट आर्म देखे हमने। जडेजा ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, शाहबाज नदीम का मैं बड़ा फैन हूं, हालांकि उनको चांस मिला वो कर नहीं पाए, बट जिस तरह से बॉल उनका रिलीज होता है और टप्पा बहुत अच्छा है उनका। सभा भाई ने तो बहुत नजदीक से देखा हुआ है शहबाज नदीम को, इनके टाइम में बड़े अच्छे अच्छे लेफ्ट आर्म थे सरस भाई। अविनाश कुमार की बहुत चर्चा करते हैं, सुशील कुमार बिहार से खेलते थे, वो थे। अविनाश कुमार के बारे में बताएं ना सभा भाई। जी वो मंत्री का सेम नाम है, इसलिए मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इसमें। क्लियरली लेफ्ट आर्मर, हाँ, नॉट राइट फॉलोअर, वो अलग बात है। लेफ्ट मैं कह रहा हूँ कि साइरस भाई उस टाइम पे ज्यादा बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे जब सभा भाई खेलते थे। अभी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ढूंढना पड़ रहा है, और मुश्किल है, अगर आप हर स्टेट पे जाए तो क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं मिलेगा। वो सिलेक्ट हो जाते हैं कि टीम में आपको एक रखना है लेफ्ट आर्म स्पिनर, इसलिए टीम में है बस। नहीं, बट वैरायटी की बात हुई तो ऑब्वियसली पीपल विल टॉक अबाउट कि इंडिया लैंड ऑफ स्पिनर्स, बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह, प्रज्ञान ओझा अप टू सवाज टाइम। और अब मेरे ख्याल से इज इट बिकॉज द फ्लेवर ऑफ द ईयर इज लेग स्पिन, सबा जी, कि सब लोग एज राजीव जी मेंशनड, इट आल्सो डिपेंड्स कि कौन से फॉर्मेट में बॉलिंग हो रही है साइरस। मतलब T20 में यू हैव सीन ग्रेट बैटिंग ट्रैक्स, पावरफुल बिल्ड लैड्स, पावरफुल बल्ले के साथ खेल रहे हैं, 55 यार्ड की बाउंड्री, और क्या 55-60 मैक्सिमम, या फिर मेरा बेटा का बर्थडे पार्टी में वैसा ही था। या फिर ग्राउंड के डायमेंशंस एक तरफ छोटे हो जाते हैं, और इतना ज्यादा इनोवेशन हो गया है बल्लेबाजी में कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए उनके पास चूंकि ज्यादा मिश्रण होता नहीं है साइरस, उनके पास ज्यादा डिस्गाइज डिलीवरीज नहीं है। अब लेग स्पिनर के पास गूगली भी है, फ्लिपर भी है, लेग स्पिन भी है, और लेग स्पिनर के साथ एडवांटेज ये होता है कि T20 में आप डिफेंसिव अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं विद डिफेंसिव फील्ड। वहां पर सामने किसी को खड़े करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड अ स्लिप, यू डोंट नीड अ स्लिप पॉइंट, यू डोंट नीड एनीवन क्लोज बाय, सो यू कैन सेट defensive field and keep attacking. That is why someone like Rashid Khan is so effective. Yuzvendra Chahal is so effective because they bowl attacking bowling. उस तरह के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के पास वेरिएशंस है नहीं, इसी वजह से मुझे लगता है कि उनकी जो जगह है थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। पर हैविंग सेड दैट, आई फील साइरस, वनडे में और टेस्ट मैचेस में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आर वेरी क्रूशियल। वी सॉ दैट, लुक एट अक्षर पटेल यार, अपनी ही जगह पे गुजरात में ही डेब्यू किया, वहीं पे इतने सारे विकेट्स ले लिए, और क्या चाहिए, जडेजा है ही उसके ऊपर से, तो कितने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। हाँ, एक बात है कि गुजरात से लेफ्ट आर्म स्पिनर इतने सारे क्यों निकलते हैं, इससे पहले दिलीप दोषी, कितने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वहां से निकलते हैं। आई थिंक वहां की रोटी में कुछ है, पैदा होते ही लोग हाथ घुमाने लगते हैं। एक परसना भी था ना, नॉट इरापल्ली परसना, बट एक और धीरज परसना, वो भी लेफ्ट आर्मर, राइट? आई एम नॉट टू श्योर, या बट ही वाज अ स्पिनर। हां, बट कमिंग बैक टू दिस होल इशू, व्हाट डू यू थिंक? ये मुश्किल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट्स राइट टू आंसर इट आल्सो, बट अगर एक बिशन सिंह बेदी जैसा खिलाड़ी, हु वाज फेमस फॉर द लूप, फॉर कंट्रोलिंग द लूप इन द एयर, गोइंग ओवर द आईबॉल ऑफ द बैट्समैन, what happens to that kind of left arm spinner? Just gone out of the window. वो style, fooling with the loop and mesmerizing the batsman to come forward and play him. I'm presuming कि राजीव मिश्रा की at peak potential was exactly the same. नहीं, राजीव मिश्रा का हाथ एकदम मतलब कमर से आता था। वो ऊपर से वेस्ट बॉल, आर्म बॉल नहीं, वेस्ट बॉल। केदार, आप लेफ्ट आर्म केदार जादव आप बना रहे सब अभी मुझे। अरे कल रियान पराग ने भी एक डाली है वैसे कमर के नीचे से। इलीगल डिलीवरी था वो, इलीगल होना चाहिए। पर टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन साइरस, अभी भी जो यंगस्टर्स को हम लोग कोचिंग सिखा रहे हैं, जो उनको हम लोग लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग सिखा रहे हैं, वो बेसिक यही है कि आपके पास हाई आर्म एक्शन होना चाहिए, आपके पास वो लूप होना चाहिए, वो स्पिन होना चाहिए, एबिलिटी टू स्पिन द बॉल, उसके साथ साथ एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो वेरिएशन होना चाहिए, वो ड्रिफ्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें आर द बेसिक्स, जस्ट लाइक बैटिंग। अब बैटिंग में जो सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑन देयर टेक्निक एंड द बेसिक। अगर आपका बेसिक करेक्ट है, देन यू कैन कीप एडिंग मोर डायमेंशंस टू योर स्किल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर टीचिंग द यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आल्सो, because those kind of left arm spinners are still required, especially in the longer format. On good tracks in a five-day test match, you need left arm spinners
can have all this kind of variation. राजीव मिश्रा तो एक टेस्ट क्रिकेट लवर है, ओल्ड फैशन मेरे जैसा. आई प्रिज्यूम सबा ऑब्वियसली 100% डीप डाउन टेस्ट क्रिकेट इज नंबर 1. तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल्स जो थे 1970s 80s 90s में, they are not required now because you're looking at Akshar Patel bowl into the rough, flat and hard. The skills have changed. Is this the way cricket is? What can you explain it? मुझे तो लग रहा है साइरस भाई बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग चेंज हुई है अगर आप देखें, क्योंकि T20 फॉर्मेट आने की वजह से अब एक तो 4 दिन में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होने लगे, और उसके बाद जो पहले लोग डिफेंस पे ज्यादा जाते थे, टेस्ट क्रिकेट में वही चीजें अटैक करने लगे. आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में लोग रिवर्स स्वीप मार रहे हैं. मैंने उस दिन देखा जेम्स एंडरसन को पीछे ऋषभ पंत ने स्वीप करके छक्का मार दिया. तो ये आज की फेयरलेस क्रिकेट है और ये फेयरलेस क्रिकेट बदल रही है चीजों को. अगर आप देखें क्वालिटी स्पिनर आते हैं और एक टर्निंग ट्रैक है, सबसे ज्यादा बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं. आप याद करें मॉन्टी पनेसर और ग्रैम स्वान आए और इंग्लैंड ने जब इंडिया में आके इंडिया को हराया, तब हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे. तब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सारे खेल रहे थे. तो अच्छा क्वालिटी स्पिनर आया और टर्निंग ट्रैक पे, तो हमारे बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं, हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट में. और इसीलिए कि वो एक तो उनका, अगर आप मॉन्टी पनेसर का याद करें, बॉल हवा में तो स्पिन कर रहे थे बट आता ज्यादातर बॉल उनका पैड पे लग रहा था, क्योंकि पिच करके उनका आर्म बॉल था, उनका जो स्ट्रेंथ थी उससे वो लगातार विकेटें ले गए. आज के दौर की क्रिकेट भी आप अगर देखें, अक्षर पटेल को विकेटें इसलिए मिली कि बॉल टर्न नहीं की उन्होंने, टप्पा अच्छा था उनका, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी और लोग टर्न के लिए खेलने जा रहे थे, सारी बॉलें पैड पे खा रहे थे. तो वो एक अलग तरीके की टेस्ट क्रिकेट हमने देखी इस बार, खासतौर से जो चेन्नई और अहमदाबाद के पिचेस पे देखी है. पुराने टेस्ट मैचेस में बड़ा मजेदार कुछ इंसिडेंट तो मैंने सुने कि रॉडनी हाउ एक बार इंडिया आए और वो पैड कर करके टेस्ट मैच बचा ले गए. 2-2.5 घंटे उन्होंने सिर्फ पैर से बैटिंग की थी, क्योंकि तब फ्रंट फुट पे आउट नहीं मिलते थे. तो रूल्स भी बहुत चेंज हुए हैं, अब फ्रंट फुट पे आउट होते हैं, DRS है, तमाम चीजें आ गई हैं. तो इसलिए मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट भी शॉर्टर फॉर्मेट में बदलता जा रहा है, क्योंकि 5 दिन की क्रिकेट, आप साइरस भाई इससे पहले याद करें कि कब 5 दिन पूरे आपने टेस्ट मैच देखे हैं पिछले 2-3 सालों में. 4 दिन 3.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है. तो ये एक बड़ा चेंज है. उसमें जितना रोल मुझे लग रहा है, सबसे ज्यादा रोल तो T20 फॉर्मेट का है, जहाँ पे लोग स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर चुके हैं, डिफेंस कम करते हैं. आप देखिए आज के दौर में स्ट्राइक रेट की बात बहुत ज्यादा होती है, और ये बात टेस्ट क्रिकेट में भी आ चुकी है, जहाँ पे बहुत मुझे लग रहा है चेतेश्वर पुजारा एक बैट्समैन ऐसा है जो पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखने जाएं, चेतेश्वर पुजारा एक बैट्समैन ऐसे है जो थोड़ा डिफेंसिव खेलते हैं. नहीं तो ऑलमोस्ट सारे आपको बैट्समैन नजर आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्ट्रोक्स खेलते हैं टेस्ट मैचेस में भी. Craig Brathwaite. But you know, Cyrus, you can, you know what? The day Cheteshwar Pujara plays a T20 game and the first ball he faces, hits it over the top for a 6. That day you can say that you have seen it all. But abhi kya karega? He has to earn his money also. But what Rajiv is saying, there's another point to it. The other side of that, कि batting इतना fast हो गया और risks are normal now in the way they bat. That is why 36 all out happens. कभी-कभी. Attritional batting तो है नहीं. Like you said, Pujara तो एक है. We are struggling to find a second name who can bat session after session. Exactly. हाँ, तो समझ जी आप बताइए, is that good or bad? I remember Mike Atherton watching off Alan Donald. आपको याद है सर, राजीव सर, you know, taking it on the shoulder, on the back. वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है YouTube पे, हम लोग बहुत देखते हैं. क्या एनकाउंटर है वो, जबरदस्त. But you know what, Cyrus, मुझे ये भी लगता है कि responsibility also lies with the administrators in a big way. And I'm looking at the larger picture for Test cricket. Longer format में बहुत ज़रूरी है that the hosting associations or the hosting board or the administrators understand the so-called finer aspects of Test cricket. Test cricket is all about having all these 3 aspects to the fore, right? From skillful batting to pace bowling to spin bowling. All these aspects have to come to the fore. अगर आप विकेट उस तरह का बना रहे हैं which is lopsided only in one skill, then such skewed results is bound to happen. तो उस तरह की तैयारी नहीं हो पाती है. अब यहाँ पर इंडिया में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह के विकेट्स बनाए जहाँ पर 1.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है. बट ये भी फेयर है, ये फेयर है, राइट? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये फेयर नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में हार्ड विकेट्स मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में हार्ड विकेट्स मिलते हैं, इंग्लैंड में स्विंग और सीम मिलते हैं, इंडिया में टर्निंग विकेट्स मिलते हैं. आई नो साइरस, पर ये फेयर नहीं है. चाहे यहाँ पे मिल रहे हैं या फिर बाहर ही जा रहे हैं, वहां पे भी मिल रहे हैं. मैं कह रहा हूँ अगर हम बाहर जा रहे हैं इंग्लैंड में, वहां पर अगर ऐसे विकेट्स मिल रहे हैं जो जिसमें 4 mm या 5 mm की घास लगी हुई है और 1.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए. तो स्पोर्टिंग विकेट क्या होता है फिर? स्पोर्टिंग विकेट ये होता है साइरस, जहां पर एटलीस्ट फर्स्ट डे देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर द पेस बॉलर, सेकंड डे थर्ड डे
it turns out to be good for batting, and then on fourth day or third day onwards, it starts to turn a little bit. That is the ideal definition of a sporting wicket. टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगर ये है स्पॉटिंग विकेट तो बैटिंग नहीं होता है साइरस, नहीं होता है, बिकॉज फोर्थ डे लास्ट डे फिर जो टीम जो रन्स बनाने होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. फर्स्ट डे जो अगर आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली है तो वहां पर आपको डिफिकल्ट फेस खेलना पड़ता है. वहां पर जो बैटल ऑफ एट्रिशन के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो देखने को मिलता है. यू हैव टू सर्वाइव द फर्स्ट डे एंड देन एज द गेम प्रोग्रेसेस देन यू कैन फ्लरिश. So I think that is the whole idea about Test cricket. धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपने फेवर में जो विकेट बनाने शुरू कर दिए हैं उस पर मुझे लगता है कि रोक लगानी होगी, तभी फ्यूचर जो है टेस्ट क्रिकेट का ब्राइट रहेगा. नहीं तो क्या फायदा है, एक दिन डेढ़ दिन में मैच खत्म हो जाना है, कोई मतलब ही नहीं है उसका. By the time अहमदाबाद टेस्ट में पहुंच गए हम लोग, I think it was just not even a contest. Yeah, not even a contest. जैसा राजीव ने बताया, he was playing for the turn which is not there, and every commentator saying the same thing. मगर second innings में same effort, next test match में same effort. तो और मुझे तो ये लग रहा था इंग्लैंड की जो टीम वो वेट कर रही थी कि लॉकडाउन लग जाए मैं वापस चला जाऊं यहाँ से. Lockdown before wicket, LBW. चलो, we have to take a quick break. उसके पहला I want to just ask you one thing. ये slightly controversial question है. Is this the best Indian cricket era of all time? बहुत लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, we knocked them out, except for England and maybe New Zealand, we have won everywhere and we are winning easily. Is that too much what we are saying, या इसमें कुछ है? I think थोड़ा बहुत सब्सटेंस है, पर मुझे लगता है मैं अभी भी वेट करूंगा साइरस, because I think we need to once we start to win abroad regularly, then I will say this is the best ever Indian side. अभी भी हम लोग इंग्लैंड में जीते नहीं हैं, हम लोग साउथ अफ्रीका में जीते नहीं हैं, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीती है, वो एक अच्छी बात है. देयर इज अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, बट आई वुड स्टिल वेट बिफोर पासिंग अ कमेंट ऑन दिस. अब लेट्स डिस्कस की कमी क्या होगा इसमें, बिकॉज़ वी हैव गॉट द फास्ट बॉलर्स 5 6 7 8 है as far as I can count. We have got the spinners, maybe not so much left arm, we just Jaddu and Akshar have come to the fore, but we've got a couple of spinners waiting in after Ashwin as well. Batsmen तो there's no end. Yeah, you're absolutely right. हमारे पास अब सभी रिसोर्सेज हैं जो हम लोगों को हेल्प करेंगे बाहर जाके मैचेस जीतने में. और मुझे लगता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो फाइनल होने वाला है इंग्लैंड में, वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म रहेगा इंडिया के लिए प्रूव करने के लिए that we have well and truly arrived and that we are the number 1 cricketing nation in the world right now. But न्यूजीलैंड को हल्का साइरस भाई मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा. आज की मॉडर्न जो टीम है वो भले ही उस पे चर्चा होती रहे कि बेस्ट है या नहीं है, बट माइंडसेट को लेकर मुझे लग रहा है ये टीम ऑल टाइम ग्रेट है, क्योंकि इस टीम का जो माइंडसेट है वो ड्रॉ के लिए नहीं जाता कभी. पहले की टीमें जब ट्रैवल करती थी हमारे हिंदुस्तान की, तो पहला होता था यार ड्रॉ के लिए जाएं, देन टेस्ट मैच बचाएं, देन तीसरा ऑप्शन होता था जीतना. आज का अगर आप मॉडर्न डे की जो हमारी टेस्ट टीम है उसको देखें, उनका माइंडसेट है कि वो जीतने के लिए जाते हैं, वहां हार जाए कोई बात नहीं, 36 पे ऑल आउट भी होते हैं वो, लेकिन यही टीम आप देखिए कमबैक करती है. हम वहां पे टेस्ट सीरीज जीत के आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. विराट ने जब कप्तान बने थे, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसकी सोच को बदलना चाहता हूँ, उसकी जो कल्चर है उसको चेंज करना चाहता हूँ. ये एक बड़ा चेंज है जो विराट की कप्तानी में हमने देखा कि माइंडसेट चेंज किया उन्होंने. वो जाते हैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलने, हार जाए कोई बात नहीं, बट वो अपना माइंडसेट अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाते हैं कि ये टीम ऑल टाइम ग्रेट है और ग्रेट की तरह जाके परफॉर्म करेगी. अगर आप इराज को कंपेयर करना है राजीव भाई, तो टेल मी वन थिंग. आपको याद है कि सुनील गावस्कर के खिलाफ वी हैव गॉट माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स वगैरह वगैरह, वसीम अकरम, इमरान खान, सरफराज नवाज अर्लियर ऑन, डेनिस लिली, थॉमसन, इंग्लैंड का जॉन स्नो एटसेट्रा. तो इज इट पॉसिबल कि इन दैट इरा द बॉलिंग वाज मे बी अ लिटिल बेटर, द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग? साइरस भाई इक्विपमेंट भी नहीं थे इतने कि आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए इतने इक्विपमेंट्स लेके खेलें, और उस समय का बॉलिंग, और जहां तक मुझे याद है कि बाउंसर रूल, अनकवर्ड पिचेस भी होती थी, जहां पे डेरिक अंडरवुड एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनके लिए कहा जाता था कि उनको अनकवर्ड पिचेस पे आप खेलना ही इम्पॉसिबल था. तो वो एरा अलग था, और वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि उस एरा में जो बैटिंग हुई उस समय के, उस एरा की बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी. आज के एरा की बैटिंग बहुत इनोवेटिव हो चुकी है बिकॉज ऑफ T20 फॉर्मेट. आप जैसे कि मैंने कहा, ऋषभ पंत जिस तरह से जेम्स एंडरसन खेलते हैं, वो एक तरह से बेइज्जती करना है कितने बड़े बॉलर की, जिस तरह का शॉर्ट बॉल खेलते हैं. इसके अलावा आप डेविड वार्नर को देख लें, वो टेस्ट मैच में भी रिवर्स स्वीप मारते हैं.
हमने केविन पीटरसन को देखा किस तरह से उन्होंने इंडिया में आके टेस्ट मैचेस में बैटिंग की है। तो ये आज के दौर की बैटिंग और उस दौर की बॉलिंग, ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिसमें बहुत डिटेल में कभी बातचीत की जा सकती है सारस भाई। तो ये इम्पॉसिबल कंपैरिजंस रहेगा, राइट मुझे लगता है अलग अलग एरा को के लिए कंपेयर करना बहुत Sir, but you have played almost from two eras yourself. Do you feel that India's cricket worldwide is more difficult now? I think it has evolved more and a rapid pace, Cyrus, because you know हम लोग कहते आ रहे हैं कि बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, पर बैटिंग के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब लुक एट DRS, इट्स अ बिग फैक्टर। आई थिंक अंपायर्स हैव बिकम फार मोर बोल्ड इन गिविंग डिसीजंस। हमारे जमाने में हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्पिनिंग ट्रैक पे अच्छा खेलते थे, पर हम अच्छा तब खेलते थे जब फ्रंट फुट पे LBW नहीं मिलते थे, वहां पे DRS नहीं हुआ करता था, तो हमारे पास कुछ काम नहीं था, हम सीधा पैड लगा के खेल देते थे। Jimmy Adams, हाँ याद है, पैडम्स करते थे। Adams. वो अगर आज के जमाने में होता तो उसके हर एक इनिंग में 0-0 ही लगा रहता। मुझे लगता है बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं अभी, और इन चैलेंजेस में जिस तरह की बैटिंग देखने को मिल रही है, दैट इज रिमार्केबल, एंड ऑल दैट हैज हैपेंड बिकॉज द गेम हैज इवॉल्व्ड इन सच अ वंडरफुल मैनर। लुक एट पेस बॉलर्स, कितने सारे वेरिएशंस आ गए हैं। अब आपने you spoke about Michael Holding, all these fast bowling greats, but I don't recall none of them ever had a disguised slower delivery, that kind of a thing. So these are the challenges. और होल्डिंग का एक जवाब था उसके लिए ना, होल्डिंग ने क्या कहा ऑन एयर इंग्लैंड के डालता हूँ मैं अगर मैं 95 माइल्स पे डाल सकते बॉल, तो मैं स्लो बॉल में क्या जरूरत है yeah. So I think but what is heartening and what is refreshing for the sport is that it has to evolve regularly to sustain itself, and I think that is the wonderful part about sports का मतलब है contest, am I right? I mean जो भी, I mean not just cricket. तो सारे you're absolutely right. आज के जमाने में ना थोड़ा contest कम हो रहा है, because if you look at the top maybe 7-8 nations में से 3-4 ही टीमें हैं जो competition दे रही हैं एक दूसरे को। इंडिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, मे बी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की भी हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। उसके अलावा कुछ है नहीं। ऐसे भी हम लोग ने पाकिस्तान से हम लोग खेलते ही नहीं है, तो उनको तो हटा ही दिया जाए। उसके अलावा टीम्स कहाँ हैं? जिम्बाब्वे इज गोइंग डाउन, बांग्लादेश इज गोइंग डाउन, वेस्ट इंडीज आर स्ट्रगलिंग। तो आई थिंक वो और कंपटीशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिकेट के लिए। स्ट्रगलिंग रेड बॉल क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सब लोग का है, कोई प्लानिंग भी है, कुछ प्री प्रोडक्शन भी है, एंड आई थिंक दे हैव अ फ्यूचर। West Indies, for example, West Indies का 2 world championships already here. Yeah, T20 में, and they're always going to be a force in T20. इसलिए साइरस ना अभी ICC का रोल बहुत ज्यादा important है यहाँ पे ना। ICC what they are trying to do is to introduce cricket in multi-discipline competition. Like next जो Commonwealth Games होने वाला है बर्मिंघम में, वहाँ पर पहली बार the women cricket will take place. T20 फॉर्मेट होगा वहाँ पे, हाँ, बर्मिंघम में जो Commonwealth Games होने वाला है। अब उसके बाद दे आर लुकिंग एट इंट्रोड्यूसिंग क्रिकेट इन एशियन गेम्स, बिकॉज सबको ये लगता है कि ओरिएंटल मार्केट जो है, चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे सबके पास टीमें हैं। तो इनको अगर हम लोग यहाँ पे रीच आउट करते हैं, इमेजिन चाइना सच अ ह्यूज सर, फिर लेफ्ट आर्म चाइनामैन को क्या होगा? बहुत कंफ्यूजिंग होगा ना लेफ्ट आर्म चाइनामैन। बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको? नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। Incidentally, Cyrus, yeah, last year Thailand की women team, they participated in the T20 World Cup for women, and they did fairly well. They beat one big team, right? No, I think they managed to play well against one of the big sides. But yes, I mean they do have some good cricketers coming through. लेकिन सवा भाई ये भी देखना पड़ेगा कि जो थाईलैंड की आप बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, हर जगह इंडियन खेलते हैं उनकी नहीं राजीव, मैं मान रहा हूँ, पर चाइना और थाईलैंड में इंडिया के नहीं है। तो मतलब यहाँ के डिस्कार्डेड प्लेयर्स जाके अगर खेल रहे हैं, सिंगापुर से खेल रहे हैं या थाईलैंड से खेल रहे हैं, मैंने यूएस में गया, मैं वहां भी देखा कि इंडियन खेल रहे हैं, पाकिस्तानी खेल रहे हैं। राजीव जी, नौकरी भी एक चीज है भाई, जाने दो। काम तो मिला यार। नहीं, यूएस में है राजीव, पर चाइना और थाईलैंड में ओनली लोकल प्लेयर्स. So I think that is very good sign. But even if there is influence by the powerful countries, so what? Initially, you need that little bit. But I just hope कि red ball cricket, this World Test Championship, will they repeat this? यार अभी कोविड के बारे में, I mean कोविड के बाद nobody knows what's going to happen. बहुत मुश्किल है साइरस यार, मुश्किल है ना, no one is paying attention to क्या होने वाला है, yeah, I mean it's so difficult. I mean ICC is struggling, all the stations are struggling. और इतना परिवर्तन हो गया उसके बाद, because they had to change the setup. Yeah, everything. ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया. I couldn't travel here, you can't travel there. After all that combination permutations के बाद, I don't know how they came up with the point system. Where India is winning everything and struggling to qualify. It made no sense यार. Yeah. Anyway, जो हुआ we are going to
Technical committee sir, I think Anil Kumble, Rahul Anil Dravid. Kumble, Rahul Dravid are there. Rahul Dravid को गुस्सा हो गया आजकल तो he won't call him. Okay, before you go to break, I have to ask these questions, यार, because हम लोग Indians हैं and Indians always ask this. Rajiv, Sabha, best batsman you've ever seen? For me, Martin Crowe. I love batting Martin Crowe. Above everybody else, Martin Crowe. Yeah, I love Martin Crowe batting. क्या बात है. For me, SRT. Sachin Ramesh Tendulkar. And there is a reason behind this, Cyrus, because जो पहला साल था सचिन तेंदुलकर का, पहले साल when he was picked to play for India, 89. Pakistan. And I don't know whether you watched that game or not. I watched everything. No. Before that, before he was picked for the Indian side, we were playing a match at the Wankhede, rest of India versus Delhi. And so Sachin Tendulkar played that game, and I was there in the 11. And I saw him bat from very, very close quarters. I think we had a decent partnership. और that was मेरा पहला time था मैंने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा था. And I was blown away कि यार ये क्या है, 15 साल का लड़का इस तरह से कैसे कोई खेल सकता है. And Delhi had a very strong pace bowling attack. They had Manoj Prabhakar, they had Atul Vasan, they had Sanjeev Sharma, they had Maninder Singh. Strong bowling attack. उसके सामने ये 15 साल के लड़के ने जो बैटिंग की थी, उसके बाद से जो उसके प्रोग्रेस जो मैंने देखा है हर साल, वो जो बल्लेबाजी में जो उसने मेहनत की है, वो रिमार्केबल है. और इसीलिए मेरे लिए आई थिंक इज द फेवरेट ऑल टाइम प्लेयर. All wicket player, but even I think Martin Crowe, Rajiv ने mention किया, what a fantastic batsman. People don't remember him. वो साइरस भाई वो गले में रुमाल बांध के बैटिंग करना, वो अभी भी याद आता है. और उनका जो स्टाइल था, खास तौर से 1992 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता, वो कुछ इनिंग्स तो मैंने जबरदस्त सिंगल हैंडेडली उसने बैटिंग किया. क्या और टेस्ट मैच में इनोवेट किया दीपक पटेल फ्रंट पे ओपनिंग पे. नहीं, दीपक पटेल और फिर उसने शुरू किया था ना पहले 15 ओवर में Mark Great Batch. He's not been given his due, yaar. Great strategist. Not been given his due. But guys, we have to take a quick break, because break के बाद मेरा हल्का सा friend, not really, dost, whatever he is, Silvery will join us, and we will do AMAs, because cricket is such an important subject. Okay. In case you are going to Kumbh Mela later, just carry tuwal or topi or receipt. कि आपकी कोविड टेस्ट करके आया. Okay, small break. Okay. And he's here. Hello, good morning, everyone. Good morning. All right, let's get to the AMAs. The first AMA question comes in from Ritik Rawat. He says, guys, what are your thoughts about KL's knock and Sanju Samson? कितना विकेटकीपर बैट्समैन है इंडिया में भाई. We can have a separate team, only wicketkeeper batsman. यहाँ पर एक बैठा हुआ, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं आईपीएल की टीम. साइरस, this is wrong. Look at me waiting. Sabha, you were quite a fast batsman here. I'm thinking perhaps 10 साल इधर उधर अगर हमने adjust किया था, तो you would have been captaining a franchise. थोड़ा 10 को और थोड़ा ऐड कर देते हैं. I think 15 तक ठीक हो जाता है. क्रिस गेल अभी तक चालू है ना, क्रिस गेल की गाड़ी. That's true. That is true. But Sanju Samson, unbelievable stuff, and I think we have seen that he's, I think, the only Indian player who's got 4 IPL 100s so far. Four. Virat has 5. Virat has got 5. Yeah. So among the younger lot, I think he's 26, Samson, and he has got 4 IPL 100s. Unbelievable. And I think the way he batted yesterday was sublime, so effortless, very pleasing to the eye. His body position and the way he executes those shots, all that were breathtaking. And I think the best part about Sanju Samson is that he seems to grow now as a captain. And I expect a lot from him this season for Rajasthan Royals. KL Rahul, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, even at the international level, he's been a great player for India. Match-winning performances with white ball. Saw that in the recently concluded India-England series. Even for T20 matches, make him open, make him bat middle order. He's such a utility player for India, and good to see that he's taken to this role as a captain and as a batsman for Punjab Kings also. But Sanju Samson, you would think he 13 runs tha last over mein, and he had to. I mean, he should have won from there. Not to criticize, but the game is in his control. The batsman is 100 plus. The opposition is on back foot. Only 13 runs via T20 standard Indian grounds, and the bowler is not the greatest in the opposition. So, आपको क्या लगता है कि something when you choke? I mean, is that a fair criticism?
No, I think it is just due to some superb bowling by Arshdeep Singh, because he changed his angle completely. उसने जो बॉल डाली वो आउटसाइड डॉस्टम था, वहां पर आई थिंक संजू सैमसन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. वो पहली जो डॉट डिलीवरी हो गई उसके बाद आई एम श्योर प्रेशर बढ़ जाता है. He did manage to hit a six, but the last ball I think he connected quite well. It's just that was the longer part of the ground, and I think strategy wise Arshdeep and Punjab Kings were just a little bit ahead of Sanju Samson. So basically last over में कुछ भी हो सकता है, no matter how good you are, no matter what the momentum is, you know. But you know what, Cyrus, यही तो गेम चेंज हो गया है. हम लोग के जमाने में 6 runs 7 runs in the last over was, we would say कि नहीं it is gettable. Anything beyond 8, अरे यार छोड़ दो, चांस ही नहीं है. अब सभा भाई याद कीजिए ना, सचिन तेंदुलकर ने आखिरी ओवर डाला था, हीरो कब था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मैकमिलन. हाँ 4 रन बचे थे और नहीं बने वो 4 रन. तो कैसे क्रिकेट चेंज हुई उसका बड़ा एग्जांपल है. मैंने सुना कि नो बॉलर वांटेड टू बोल. हाँ, मना कर दिया था सबने जी. हाँ, सब लोग, I won't use the word डर गया, but they refused to bowl and then Sachin took the ball. Is this true, Sabha? Yeah, I mean, I wasn't there, but I think this side of the story is true, Cyrus. Pressure. Anyway, next question, sir. All right. Next one comes in from Harvesp Kasad. Hey, Harvesp. He says, do you think there is a difference between people sitting at the auction table as compared to being the captain on the field? I am talking about when Samson turned down a single when Morris was on non-strike. There's a second part of this question. He says, Rajasthan Royals paid a huge amount of money for a player like Morris, which people say is far too much. So one game, yaar. Guys, एक ही game. Yeah. I mean, can you judge in one game? I mean, yaar. Rajiv, you go ahead. है सभा भाई, देखिए ये तो होता ही है, आईपीएल के ऑक्शन में बैठना, वहाँ ईगो प्रॉब्लम कभी कभी टकराती है कि बोर्ड उठाना जरूरी हो जाता है. मुझे लग रहा है इतना क्रिस मॉरिस को हम सारे आईपीएल में देख रहे हैं, कई सीजन से देख रहे हैं, बहुत पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन उस पैसे के हिसाब से अगर आप देखें और उसको डिवाइड करें उनके प्रदर्शन में, तो बिल्कुल कहीं से नजर नहीं आता वो चीज. अगर आप संजू सैमसन को अगर रिफ्यूज कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक मानता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे टच में वो लग रहे थे और स्ट्राइक वो रखना चाह रहे थे. बीइंग अ कैप्टन वो उनका डिसीजन था. बट अगर आप एनालिसिस करें क्रिस मॉरिस की बॉलिंग को एज अ ऑलराउंडर, अगर टीम में उनको जगह दी जा रही है तो फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सीजन हो गए, हर सीजन में वो बोर्ड उठते जाता है ऐसे धड़ाधड़. सरद भाई आपने देखा है, और वो तो चाहते होंगे चलता ही रहे, वो मैच हो ना हो, बोर्ड उठता रहे आईपीएल ऑक्शन में. तो वही जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं इस खास तौर से इस वाले ऑक्शन में जिनको बोर्ड उठने में मजा आया होगा, बैट उठे ना उठे मैदान पे. पर एक और बात ये भी है राजीव, टू ऐड टू दैट, टू योर आंसर, इसके क्रिस मॉरिस को इतने ज्यादा पैसों में खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने बिकॉज ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. और अगर वो ऑलराउंडर है तो फिर उनको इतने नीचे भेजने की आवश्यकता क्या थी, उनको और थोड़ा ऊपर भेज देते. तो मुझे लगता है कि अगर आपने किसी प्लेयर को खरीदा है तो उसको बैक करना होगा, उसके टैलेंट को बैक करना होगा. तो ऑलरेडी बेन स्टोक्स तो है ना. लेकिन सभा भाई फिर वही बात आती है ना, पवन नेगी को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था करीब 8.5 करोड़ रुपए में, हर साल, और उनको 2 मैच भी खेलने को नहीं मिला. तो फिर ये तो पैसे आपको मतलब कभी कभी होता नहीं कि आपने लगा दिया, दांव लगा के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं फिर. तो वही हुआ है, कई ऐसे खिलाड़ी जिनको बहुत पैसे मिले, मैच भी नहीं खेलने को मिलता उनको. But I think getting back to that question, I think it is equally important that there has to be a sync between the captain and the person who's sitting at the auction table. You have to be on the same सर, पर आप परफॉर्मेंस कैसा गारंटी कर सकते हैं? पेपर एक बात है और एक्चुअल लाइफ दूसरी बात है. नाउ हाउ कैन यू गारंटी फ्रॉम, इफ दैट वाज पॉसिबल देन सब लोग के पास सिर्फ सफलता पे सफलता होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. Yeah, no, what I'm trying to say, Cyrus, is that Sanju Samson also has to buy in the fact that the team management Rajasthan Royals has such strong belief in this player, and I think then that is how the utility of a player really comes to the fore. That's the point I'm trying to make. नहीं सभा भाई, और ये सारस भाई जो सभा भाई कह रहे हो उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. कैप्टन को क्या चाहिए, ये पहली होना चाहिए. अगर आप सीजन से पहले कैप्टन अपना चुन ले रहे हैं तो कैप्टन को क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये आपको कप्तान से पूछना पड़ेगा. अगर क्रिस मॉरिस उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते हैं, सपोज विराट कोहली की स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आज के टाइम में कुलदीप यादव और चहल फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो आप जबरदस्ती उनको देंगे तो बाहर ही बैठेंगे. फिर अगर सिलेक्टर उनको दे रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि कैप्टन को क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या फेथ है एक खिलाड़ी के ऊपर. क्योंकि अगर मॉरिस पे फेथ नहीं है तो फिर आप उनको टीम में दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं. राजस्थान रॉयल्स ने कैप्टनसी की अनाउंसमेंट बाद में किया.
मेरे ख्याल से हाँ, तो खरीदने के बाद कैप्टन संजू सैमसन बन गया, तो देयर इज नो क्वेश्चन आई थिंक ऑफ संजू सैमसन बीइंग इनर सर्कल में उस टाइम। उस टाइम जी तो बट पता ये नहीं, होना चाहिए, प्रोसेस यही होना चाहिए कि कैप्टन को हमेशा लूप में आप रखें, जो आप रिसोर्सेज लेके दे रहे हैं उनको कम से कम आप उनको अपनी विश्वास में लेके तब आप चीजें करें, तो शायद ये जो हम चर्चा कर रहे हैं नहीं करेंगे फिर कि एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को हम इतने पैसे देके ले आ रहे हैं और कैप्टन उसका यूज नहीं कर रहा है। पावरफुल पर्सनालिटी विराट कोहली के टाइप जो है ना, आई थिंक दैट हैपेंस, मगर आई थिंक न्यू कैप्टन्स नॉट सो मच। हाँ ट्रू। सभाजी नोज द इनसाइड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट यार, वो सब बता सकते हैं हमको एग्जैक्ट तरीका क्या है, कैसे करते हैं लोग। वी हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर इन इंडिया। डू यू हैव टाइम फॉर वन मोर? Yes, we have some great ones. About 2-3 more. Yeah. Next one comes in from Artik Shetty. He says, "Who was Sabah Karim sir's idol growing up? Who made him want to take up the gloves?" For me, Alan Knott. Alan Knott in a big way. Fitness freak. फिटनेस फ्रीक एंड मैंने कीपिंग सीखी उनकी किताब पढ़कर साइरस। Really? और हाँ, हमारे जमाने में वी डिडंट हैव एनी विकेट कीपिंग कोच, बस ऐसे ही कीपिंग शुरू कर दिया। सो माय डैड गिफ्टेड मी विद दिस बुक बाय एलन नॉट ऑन विकेट कीपिंग, और उसमें एक जो सलाह है जो मैं अभी भी ट्राई करता हूँ फॉलो करने के लिए, इट इज वेरी सिंपल। इट सेज दैट फॉर न्यूट्रिशन और टू रिमेन फिट यू शुड गेट इट फ्रॉम द टेबल व्हेन यू वांट टू ईट मोर। And I think I have followed that so far. It has worked quite well for me. कि मतलब दूसरी helping लग रही है, खा लो, पर छोड़ दो यार, तभी तुम fit रहोगे। But Alan Knott I felt was brilliant. I mean, keeping wickets, Derek Underwood was not an easy task. और those days, if you recall, Cyrus के जो wicket keepers होते थे उस समय medium pacers को ना वो सट कर keeping करते थे, without helmet, without any visor. So Alan Knott I think was wonderful behind the stumps, and I learned a lot just reading. What about the other side? Syed Kirmani. Kiribai, yeah, highly India, respected. India सबसे best कौन था? What do you think? I mean, again, difficult question, but keeping to spinners, whole different art. I thought Kiri was very good because Kiribai का ना Cyrus अलग उनका style था. He didn't follow any so-called coaching methodology of wicket keepers. Quite similar to MS Dhoni. But those days, the way he would grab the ball from left or to right, his movement behind the stumps against seamers, he was very good. In seaming conditions, especially in England, if you notice, his body position would be perfect. I don't remember ever Kiribai fumbling in seaming conditions. So I think he was remarkable. I did play some matches against him, and I would generally pick his brains all the time. He in fact gifted me with the wicket-keeping gloves also, and I cherished it for my entire career. Wash and wear, Silvery, wash and wear. All right. Next one comes in from Abhik Ghosh. Sabah sir already kind of answered this, but he's asking, Sabah, how important is technique when it comes to keeping? Dhoni with his unorthodox technique has been exceptional. How does that happen? Yeah. Oh, well, technique is important, but I think you need to have your own style. And I feel at times, young keepers or coaches, we try and make youngsters very rigid in their keeping style. I think that should not be the case. You need to stick to the basics, learn the basics, work on your fitness, but at the same time have your unique style. And we see that now in emerging keepers. Look at Rishabh Pant, he has his own way. Look at MS Dhoni. I think even in the past we've had different characters in terms of wicket keeping. I think that's what youngsters should strive for. Sabah, should the keeper read the ball off the bowler's palms, or should he be? Has to be, yes, Cyrus. इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आजकल ताजुब होता है कि हमारे बैट्समैन क्यों नहीं read कर पा रहे हैं लेग स्पिनर्स को. That is the basic of wicket keeping. So why has that happened, Sabah? Why are Indian batsmen not reading from the hand? Because they are not watching the ball. They're not watching the release. You have to watch the release. And I think the easiest way to do that or to practice is the moment in practice sessions. जैसे ही ball छूट रही है leg spinner के हाथ से, you should say it loud. Leg spin, googly, flipper. That's how you learn. मतलब हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था. हमारे कोचेस ने यही बताया था कीपिंग करते समय या बैटिंग करते समय कि जैसे ही हाथ से बॉल छूटे तभी आपको बोलना चाहिए. Then it gets ingrained in your mind. It's easy to pick. I think these days they're not focusing at the release. If you focus on the release, you can always pick the variations of a leg spinner. Look at Rashid Khan. उसको अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं. Even Virat Kohli doesn't pick him. Yeah, even a rookie Adil Rashid, we have struggled against Adil Rashid. Silvery, can you pick the leg spinner?
Leg spinner. I have दवाई में sorry. कुछ विकेट्स भी नहीं है ना I have no बेचारा. idea. हाँ. All right. Next one comes in from Hemraj. He says, "Would you guys, would you guess cricket's future in the next 10 years will supply and demand impact cricket also? I feel more people now feel more comfortable watching a T20 match over a 5 days test match." वो तो ऑब्वियस है यार. I don't think that's going to change. एक पॉपुलर फॉर्मेट है, एक आर्टिस्टिक फॉर्मेट है, बट टेस्ट क्रिकेट विल सर्वाइव, राइट बॉयज? Yeah, I mean, Cyrus, maybe you can also give your inputs on this because, if you look at world sport, more and more we see sports now being spectator driven. Um, so, um, it, so therein lies a cue for cricket also. It is wonderful that now test matches have become far more attractive. It is good to see that the shorter format is having to play a very active role in the sustenance of test cricket also. For instance, आजकल 3 दिन या 4 दिन में मैचेस खत्म हो जाते हैं. We see attractive stroke play. Whether it is from, we also see attacking, bowlers nowadays. So I mean, all this bodes very well for Test cricket. But I think ICC and sorry to interrupt, but मगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में हाउसफुल कैपेसिटी मिलती है आजकल. The last 5 years अगर आप देखते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान ऑफ कोर्स जस्ट स्टार्टेड अगेन, साउथ अफ्रीका में नहीं मिलते, वेस्ट इंडीज में नहीं मिलते, श्रीलंका में नहीं मिलते. तो the future as a spectator sport for test cricket is not good. Yeah, I mean, that is what we have noticed. That is the biggest area of concern for ICC now. Even for all the boards. अब छोटी-छोटी जो countries हैं, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं चाह रही. उनको लगता है वो जनरेट ही नहीं कर पाते हैं रेवेन्यू. और व्हाइट बॉल में थोड़े बहुत लोग आते भी हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो कोई और छोटी कंट्री क्यों ना हो. तो ये एक, this is a big concern for cricket in general. But having said that, there will always be connoisseurs like you and me who still want to watch Test cricket. Sir, आप सच बताओ ना, तो ब्रिस्बेन का last day, I mean, that was like one of the greatest days in cricket. Yeah, I'm sorry to say, IPL, with a lot of respect and all, मगर the kind of feeling we had, I mean, we were doing a podcast. I was watching the game while doing the podcast. The podcast we just went out of the window, यार. I mean, और सबसे बड़ी बात ये भी है ना साइरस कि ये वाला जो ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच है हमें सालों याद रहेगा. आईपीएल में इतने सारे मैचेस हुए, वनडे में इतने सारे मैचेस, हम सब भूल गए. इसका मतलब है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी इज क्वालिटी. Quality is quality. Really. But to get back to your question, I am looking at globalization of cricket and looking at newer markets for cricket to sustain. But they've tried for so long, यार. चाइना में ट्राई किया, नेपाल में ट्राई किया, थोड़ा बहुत सक्सेस तो है, but there's no revolution. अभी टाइम लगेगा साइरस, बहुत मुश्किल है. You need Priyanka Chopra to do an item number. Without that, we cannot promote the sport. Imagine an item number with you and Priyanka Chopra. Minus for test cricket, huh? Slower, longer. Okay. Next one comes in from Karan Sethi. He asks, what is the reason behind the decline of West Indies cricket? But actually, West Indies cricket, they just beat Bangladesh 2 very close test matches against the run of play and drew against Sri Lanka in 2 tests. They've got some new names. So, itna bad to nahi hai. Yeah. I think a little bit of hope is there. Yeah, I think now they're coming back slowly, Cyrus. I think last 4-5 years, one has seen a refreshing change in West Indies cricket. And I think now there is a concerted effort by the West Indies Cricket Board, as well as all the island cricket associations, to get the youngsters to take up this sport. And I think that is why we see so many youngsters coming through the system now. So it is getting on safer ground. But there was a time when most of these youngsters in West Indies, in the Caribbean islands, they would prefer basketball over cricket. Most of them would migrate to US to play NBA. And I think that was a big area of concern for West Indies. But I think things have improved now. Hopefully, I think revenue generation is one of the biggest factor. पैसा उनको उतना मिल नहीं रहा है. और जब तक कि आईसीसी उनको फंड करेगी नहीं तो वो प्रमोशनल स्कीम्स बना नहीं सकते हैं, डेवलपमेंट वो कर नहीं सकते हैं. यही परेशानी है. 2 words, Lalit Modi. He can revolutionize West Indies cricket. Send him there. Yeah. Sir, कुछ नहीं बताना है इसके बारे में because it's a controversial subject. Sir is wearing many different hats. Yeah. हाँ. चलो. Next one comes in from last one comes in from Sameer Kamra. He says, should we stop ODIs and only keep tests and T20s? Relevance की बात है इसमें. Relevance की बात है. Okay, Rajiv, makes sense. You go ahead. Yeah.
मुझे लग रहा है सभा भाई कि देखिए हर फॉर्मेट का अपना ही एक मजा है, बट ये कि बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुका है वनडे क्रिकेट। आप देखें पहले 10 ओवर में आपको एक जैसी बैटिंग, फिर आप मिडिल ओवर्स में लगभग एक जैसी स्ट्रेटजी हर कंट्री की आप देखते हो, लास्ट के 10 ओवर में फिर वही आ जाता है। तो जब प्रिडिक्टेबल हो जाती है चीजें तो फिर उसका मजा थोड़ा खत्म हो जाता है। तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट की अपनी एक अहमियत है, बट वो चेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बार बार समझ जाते हैं कि यार चलो 10 ओवर के बाद बंद कर देते हैं टीवी, पता है 15 ओवर की कैसी बैटिंग होने वाली है। इसी वजह से आप देखें विराट को चेंजेस करने पड़े थे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। वो ले आए कुलदीप और चहल को, और 2-2.5 साल डोमिनेट किया, क्योंकि अश्विन और जडेजा लगभग एक जैसी बॉलिंग करने लगे थे। एक ही मैच में फेल हुआ दोनों जी, और वो उनको ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद ड्रॉप किया गया दोनों को। सर आई थिंक सवाल है कि इज देयर अ प्लेस फॉर वनडे इंटरनेशनल, क्योंकि T20 उसको ओवर पार कर दे एक साइड से और प्योरेस्ट के लिए टेस्ट क्रिकेट है, तो बीचों बीच में ये तो फंस गया, तो इसका कुछ होप है या नहीं? होप है सर, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट में मैचेस होने चाहिए। कि हम अगर अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 मैचेस की सीरीज खेल ली इंग्लैंड के खिलाफ, उससे कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। अगर हम जीत भी गए तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनी है इस समय, हर टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आईसीसी को ये भी रूल लाना पड़ेगा कि आप कोई भी वनडे मैच खेल रहे हैं उसके आपके पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, या तो आप पॉइंट्स जीत रहे हैं या फिर आप पॉइंट्स हार रहे हैं, और वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड कप में कौन क्वालिफाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरह के कॉन्टेक्स्ट के साथ वनडे मैचेस होते रहे तब ये वनडे जो फॉर्मेट है वो भी चलेगा। But if there is no context, I see very difficult for one-day cricket to flourish. But I'm sure most of the most of the cricket associations, especially with ICC, they would be working very hard to bring in this kind of context for each and every one day game. Having said that, I do believe this is ये middle वाला format है Cyrus. मतलब एक youngster के लिए T20 के साथ साथ सीधा टेस्ट क्रिकेट में अगर आप भेज देंगे तो बहुत मुश्किल है। ये इसका मतलब ये है कि क्लास 1 के बाद सीधा 10th में, अरे बीच में भी तो खेलने तो थोड़ा बहुत, ताकि कुछ तो सीख ले, 40 ओवर तो खेलना सीखे, तभी तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। एक समय लोग कहते थे कि पजामा क्रिकेट है, टू शॉर्ट फॉर्मेट, इट्स नॉट रियल क्रिकेट, नकली क्रिकेट है ये वो, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट द बोरिंग क्रिकेट। हाउ इट्स इन 20-30 इयर्स पर्सपेक्टिव में बदलाव हो गया। वाओ, अमेजिंग। One last question I would like to ask Silvery, since Sabha has represented Bengal and Bihar as far as I remember, who's going to win the Bengal elections? Would you like that ball to just go away, or would you straight to the keeper? I think Cyrus, time is up, isn't it? इस जमाने में स्लेजिंग बहुत कम था भाई। Oh God. Listen, guys, great talking to you, yaar. I hope we get to talk again. Love talking cricket. Sabha, lot of love and respect. Rajiv, thank you so much. Lot of love. Thank you, Cyrus bhai. Thank you so much, Cyrus. Really enjoyed. I've always been a big fan of your wit and your humor. Look forward to many more such chats with you. And my batting, huh? Okay. All right. Bye, guys. See you. Bye-bye.